Hello students, once again welcome to a history class. In the previous class we have already discussed the various topics like who are tribes, second difference between our society and tribal society, then how did tribal groups live, means what the tribal people used to do for their livelihood, in which we have seen that some were Zoom cultivators and we also saw that some were hunters and gatherers. Like in the previous class I already told you that as the forest produce shrank, these people, the tribal people, were compelled or forced to go out of the forest in search of food for their livelihood, isn't it? Now what happened? These tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality, isn't it? Now this led to their dependence on traders and moneylenders. Now whatever the forest produce they were getting, that was not sufficient for them. So what they used to do, these people were dependent upon the local market for various other things like grains or rice and all. So that led them to their dependence on the traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Here traders happily they sell their commodities to the tribal people because they sell the same commodity at very high price, and even the tribals were unaware of the actual rate of the commodity, and that's the reason that the traders sell the product at high prices, okay, making more profit. Now moneylenders also readily give loan to the tribals because here you will see that the moneylender, whatever the loan he used to give, that loan was actually at high interest he used to give to the tribal people. So but what happened, slowly and gradually the traders and moneylenders, what they did, they started taking more and more profit. For their profit they used to started exploiting the tribal people, and here you will see that slowly and gradually the tribal people understood that they have been grabbed in the clutches of the traders and the money lenders. Okay, so for the tribal what happens, market and commerce often meant debt and poverty. मतलब इनके हिसाब से ट्राइबल पीपल के लिए अब क्या हो गया, जो बाजार है और जो वाणिज्य है ये दोनों ही उनको कर्ज और गरीबी की ओर धकेल रहे हैं, इनका ऐसा मानना था। क्योंकि वाकई में क्योंकि महाजन हो या फिर व्यापारी हो, ये दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। सो therefore they came to see the money lender and trader as evil outsiders. अब ट्राइबल्स को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो कैसे वो जो है मनी लेंडर्स मतलब महाजन और व्यापारी के चुंगल में फंस चुके हैं, और इसी कारण वो उनको बाहरी शैतान का ऐसा मानते थे कि वो बाहरी शैतान है, और वही ये दो लोग ही मुख्य कारण है उनके सारे दुखों का, और दे बिलीव दैट दे आर द रूट कॉज फॉर ऑल द मिसरीज एंड पेन्स, एंड दैट्स द रीजन दैट दे कॉल द मनी लेंडर्स एंड द traders as evil outsiders. Understood? Now like in the previous class also I told you that they used to call them Diku, and here the Dikus were what? Who are the Dikus? Outsiders, because they felt that these people are responsible for their exploitation and these people are responsible for their all their pains and miseries. Okay, understood? Now let's move to the next topic, that some herded animals. Okay, now you will see that many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. ये जो आदिवासी है, ये कुछ आदिवासी ऐसे थे जो अपने मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जहाँ पर घास हो वहाँ पर वो अपने मवेशियों को ले जाते थे, और जैसे ही वहाँ उनके लिए जो चारा, मवेशियों के लिए चारा अगर जहाँ खत्म हो जाए, फिर वो दूसरे जगह जाते थे चारा के तलाश में। तो in this way these people used to move from one place to another. Understood? Now इस
इस पे आप देख सकते हैं कि द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स, ये भी एक तरह का आदिवासी लोग हैं, कम्युनिटी है, लाइक द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हर्डर्स, मतलब वन गुज्जर ऑफ द पंजाब हिल एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लोग जो है गाय और भैंस पालते थे। दूसरा आपका और एक ट्राइबल कम्युनिटी है द गड्डीज ऑफ कुल्लू, इन लोग जो है शीप पालते थे, मतलब भेड़ पालते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द बकरवल्स ऑफ कश्मीर वेयर गोट्स, बकरवल्स ऑफ कश्मीर ये जो है बकरियां पालते थे। तो आपने अभी आप देखा कि आदिवासी लोग अपने लाइवलीहुड के लिए कई तरह के काम करते थे। मैंने इसमें पहले भी आपको बताया, पहला थे जूम कल्टीवेटर्स, फिर हमने बताया कि कुछ आदिवासी जो है हंटर्स और गैदरर्स थे, और तीसरा अब हमने बताया कि दे वर हर्डिंग एनिमल्स। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड? Okay, now let's move to the next topic. The next topic is that some took to settle cultivation. So far what we have seen that the tribal people were zoom cultivators or they were practicing shifting cultivation. But here you will see that the tribal group started doing settled cultivation. Okay, means they used to do cultivation in one place, not moving from one place to another like it was done in the shifting cultivation. That's why we are calling it here settled cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. ठीक है? They began to use the plough and gradually got rights over the land they lived on. Now, these people where they used to cultivate, they got the rights over the land. Okay, where मतलब जो जगह पे वो कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, तो वहाँ पर उनको राइट्स मिल गया था। अब ये जो लैंड है वो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं था, वो लैंड जो है पूरे कबीले का हुआ करता था। जैसे कि हमारे इसमें होता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो पूरा लैंड है वो पूरे कबीले का लैंड होता था और उनमें सबका हक होता था। ठीक है, it was not belong to one particular person. So in many cases like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. जो मैंने आपको अब बताया कि पूरे कबीले का होता था वो पूरा जमीन। All the members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. जिस किसी ने भी शुरुआत से एक जगह पे लैंड पे रह के वहां पर कल्टीवेशन किया, उसके बाद जितने भी लोग वहां पे है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उस एक वंशज के अपने आप को एक ही वंशज का मानते थे। भले ही वो उस जगह को कल्टीवेशन लायक, वो जमीन को कल्टीवेशन लायक उनके पूर्वजों ने किया हो, लेकिन वो मानते थे कि हम लोग सब एक ही वंशज के हैं, तो इसीलिए उस लैंड पर उनका पूरा पूरा हक है। Therefore all of them had rights on the land. Very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and others follower. ऐसे कभी कभी होता है कि कबीले में कि एक या दो ऐसे इंसान होते हैं जो थोड़े पावरफुल होते हैं और थोड़े से अलग हटकर होते हैं और उनको लोग मानते हैं और लोग जो है उनको ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे लोग जो है उस कबीले के मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते थे। ठीक है, नाउ पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड्स इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। वो खुद जो पावरफुल जो मैन है, जो मुखिया है, वो खुद तो कल्टीवेशन नहीं करते थे, वो अपने लैंड को कभी कभी रेंट में दे देते थे जो ताकि दूसरे उसमें कल्टीवेशन करें, वो खुद उसमें कभी कल्टीवेशन नहीं करते थे। Understood? Now what happened? British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. अब अंग्रेज सरकार जो थी उनको जो है गोंड्स और संतल काफी सभ्य ट्राइब्स लगते थे, उनको उनके हिसाब से वो काफ़ी सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, और क्योंकि वो एक ही जगह पे जो है कल्टीवेशन करते थे, अनलाइक द हंटर गैदरर्स और द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। जैसे कि हमने क्या देखा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो है वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सिमिलरली हंटर गैदरर्स भी है, वो एक जगह पे ही शिकार नहीं करते, वो तो जगह जगह बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगता था कि गोंड्स और संतल्स जो है
ट्राइबल्स में जो गोंड और संतल जो ट्राइबल ग्रुप है वो बहुत सभ्य है, बहुत सिविलाइज्ड है। क्यों आप वो ऐसे बोलते थे? क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। कारण ये कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है, ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चाहती थी कि इन ट्राइबल से भी कर वसूला जाए, और कर तभी वसूला जा सकता है जब आप एक पर्टिकुलर लैंड पे कल्टीवेशन करें, तभी आप उनसे कर वसूल सकते हैं। अब जब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आज यहाँ पे कल वहाँ पर है, तो ऐसे स्थिति में उनसे कैसे कर वसूला जा सकता है? इवन हंटर और गैदरर्स है, इनसे भी कैसे कर वसूला जा सकता है? तो अपने प्रॉफिट के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने अब दो चुनौती थी कि ये जैसे लोग, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए या हंटर और गैदरर्स हो गए, इनको कैसे सभ्य बनाया जाए और इनको कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर सेटल कल्टीवेशन की ओर उनको ले जाया जाए, ताकि वो उनसे भी कर वसूल सके। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि वो कैसे कर वसूलते थे इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एंड द रैयतवारी सेटलमेंट। अंडरस्टूड? सो हियर आल्सो नाउ they didn't leave the tribals, they wanted to get tax from the tribals as well. So now they thought those who lived in the forest were considered to be wild and savage, so they needed to be settled and civilized. तो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने दो चुनौती थी कि इनको पहले सेटल कल्टीवेशन की ओर ले जाए और दूसरा जो है इनको सभ्य बनाया जाए। समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज मीन्स हाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज अफेक्टेड द ट्राइबल लाइव्स। अब तक हमने क्या देखा था कि ट्राइबल एक ऐसे आदिवासी लोग हैं जो खास तौर से अपनी मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फॉरेस्ट में कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, उनके ऊपर कोई इम्पोजिशन ऑफ टैक्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश सरकार के आने के बाद अब उन पर भी पाबंदी लग चुका। जो कल तक वो फ्रीडम महसूस करते थे, फ्री थे, आज उनको कहीं ना कहीं वो बंधे हुए उनको महसूस हो रहा है। और जो पहले उनकी जो जिंदगी थी और अब उनकी जो जिंदगी है उसमें बहुत फर्क है। अब वो क्या फर्क था, अब उनको क्या प्रॉब्लम से, वही सब चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल chiefs. Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो कबीले के जो मुखिया था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था कबीले का। ठीक है, दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. तो पूरा जो फॉरेस्ट है उस पे क्या होगा और उसके रिलेटेड जो कानून है ये सब कबीले का मुखिया ही बनाता था, और वो जो कहते थे वो ही फाइनल होता था कबीले में। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर अपनी पुलिस भी इनकी होती थी। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिशर्स के आते ही जो ट्राइबल जो मुखिया थे उनका जो पावर है वो धीरे धीरे जो है कम होता चला गया। They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. जो पहले ये कानून बनाते थे, पहले जो ये कहते थे वो ही आखिर होता था, means what they used to say that was the final. So the people, means their group people, the tribal people, they respected their chiefs. But now what happened, the laws which was made by the British officials, that has to be followed in the group and not the laws that was made by their chiefs. Okay, now what happened, what we have seen कि पहले जो है रूल जो बनता था, बनाते थे जो चीफ्स बनाते थे वो जो है उनके कबीले के लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब जो है
ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा बनाया गया रूल को ये चीफ फॉलो करवाएंगे अपने लोगों से। तो यहाँ पर जो चीफ है वो एक महज एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स मतलब ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि जैसे वो थे। अंडरस्टूड। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको जो है कुछ गिफ्ट्स के तौर में कुछ नजराना जो है ब्रिटिशर्स को भी देना पड़ता था। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। और इनके साथ ही साथ इनका क्या काम था कि वो अपने जो कबीले के जो लोग हैं बाकी आदिवासी हैं उनको अनुशासित करना, उनको जो है डिसिप्लिन में लाना, ये काम है चीफ का, ट्राइबल चीफ का। सो दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। जो पहले इनके जो दबदबा या वर्चस्व अपने लोगों के बीच में था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो वर्चस्व और वो जो दबदबा है वो धीरे धीरे खोता जा रहा था। अब ये जो चीफ है, जो कबीले के जो मुखिया है, वो महज एक ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि बन के रह गए थे। जो कानून वो चाहते थे, जो ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि लागू हो, उसको वो चीफ जो है अपने कबीले में लागू करवाते थे। लेकिन अब जो है पहले जैसा उनका कोई ताकत या कोई उनका वर्चस्व अब जो है पावर जो है उनके लोगों के बीच में नहीं था। यहाँ तक जो इनका ट्रेडिशनल फंक्शंस था जैसे कि गाना और डांस और जो इनका जो ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज है ये तक भी अब वो नहीं कर पा रहे थे। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट वी विल सी, as we have seen that the tribals slowly and gradually they lost all sort of freedom, and even the traditional, their rights, their culture, their tradition was also at stake because of the after the coming of the Britishers. Okay, अब इसमें इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, जो जूम कल्टिवेटर्स थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ ब्रिटिशर्स का कैसा रवैया रहा। Okay, the British were uncomfortable with the group who moved about and did not have a fixed home. As I told you before also that the Britishers considered the Santals and the Gonds as the most civilized people as compared to the shifting cultivators and the hunters and gatherers, isn't it? Now their first, so उनके सामने क्या चुनौती था कि इन लोगों को जैसे कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को और हंटर और गैदरर्स को कैसे उनको सेटल्ड कल्टिवेशन में लाया जाए और कैसे उनको सभ्य बनाया जाए। ठीक है, तो वी विल सी हियर the tribal group, they wanted to settle the tribal group and become a peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move, because उनके लिए बड़ा आसान होता है उनको कंट्रोल करना, जो एक ही स्थायी रूप पे एक ही जगह पे जो कल्टीवेशन करते हैं उनको कंट्रोल करना और साथ ही साथ उनसे कर वसूलना बड़ा आसान है। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उनको अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप कैसे तय कर सकते हैं कि उनका कितना एरिया कल्टीवेशन में है और कैसे आप उनसे कर वसूल सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको पहले सेटल करना सबसे बड़ा चुनौती था ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। दैट इज व्हाई दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो हाउ दीज पीपल यूज्ड टू टेक tax from the peasants in the form of Mehelwari settlement or permanent settlement or the Raiyatwari settlement, isn't it? The British effort to settle Zoom cultivator was not very successful. Why? We will see that as the British government wanted to settle the Zoom cultivators, but here the to settle down the Zoom cultivator was not so successful. Why? Because settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. यहाँ पर आप स्थायी रूप से कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जहाँ पर पानी की कमी हो और जहाँ मिट्टी बहुत ही सूखा हो, वहाँ पर आप एक ही जगह पे रहकर एक सेटल कल्टीवेशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम जो है जूम कल्टीवेटर्स के सामने भी था, क्योंकि उनको कह दिया गया था कि आप एक ही जगह पे आप जो है कल्टीवेशन करोगे, लेकिन जूम कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पानी का एक तो पानी की कमी थी और दूसरा जो है
सॉइल भी सूखा रहता था और ऐसे जगह पे आप जो है स्थायी रूप से कल्टीवेशन एक ही जगह पे आप बार बार नहीं कर सकते हैं. सो इन फैक्ट द ज़ूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लॉव कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स. जो ज़ूम कल्टीवेटर्स ने ये महसूस किया कि पहले जब वो ज़ूम कल्टीवेशन करते थे जो जितना उनको प्रोड्यूस मिलता था, अब सेटल्ड कल्टीवेशन के द्वारा उनको इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा उनको यील्ड नहीं हो पा रहा. तो ऐसे स्थिति में ज़ूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी जो पहले जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था, जो पहले वो परंपरागत तरीके से जो खेती करते थे, उन्हें उसी तरीके से खेती करने दिया जाए. ओके, सो फेसिंग widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. अब क्या हुआ, और कुछ लोग अनुरोध भी करे और उन्हीं से में से ज़ूम कल्टीवेटर्स कुछ लोग विरोध भी करने लगे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में. तो ऐसे स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को और कुछ नहीं सूझा, उनको फाइनली जो है दे हैड टू अलाउ देम द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन. Understood? Now we will see the forest law and their impact. The next topic is forest laws and their impact. Okay. Now in the previous what we have seen how the shifting cultivators were changed into a settled cultivators, but because of the two things, दो कारणों की वजह से settled cultivation सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि पहला तो पानी की कमी और दूसरा ज़मीन का सूखा होना. ये दो कारणों की वजह से जो है आपका सेटल कल्टीवेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी कोशिश ब्रिटिश सरकार ने की थी. इस वजह से जो है ज़ूम कल्टीवेटर्स ने दबाव डाला ब्रिटिश सरकार पर कि उन्हें अपनी परंपरागत खेती जैसे पहले वो करते थे उसे करने के लिए छूट दिया जाए और वो करने दिया जाए. Isn't it? तो इस तरीके से जो है फाइनली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मानना ही पड़ा और इस तरीके से ज़ूम कल्टीवेटर्स दे कंटिन्यू टू डू देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. लेकिन अब द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. हमने ये देखा था कि आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए जो है ये फॉरेस्ट ही सब कुछ है. That was the ultimate end. It was their home for them. Now, so changes in forest law had a considerable effect on tribal lives. अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है कुछ कानून फॉरेस्ट लॉ उन्होंने इम्पोज किया ट्राइबल्स के ऊपर, जिसके वजह से ट्राइबल लाइफ ऑल्सो started suffering. Okay. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. अब ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित कर दिया कि जितने भी जंगल या जितने भी वन है वो जो है राज्य की संपदा है, राज्य संपदा है, मतलब वो जो राज्य स्टेट की जो है वो प्रॉपर्टी है. Some forests were classified as reserve forest. इसका क्या मतलब है, अगर कोई फॉरेस्ट को आपने स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, it means it is no more the property of the tribals. Understood? So some forests were classified as reserved forest for they produce timber which the British wanted. अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कुछ फॉरेस्ट, कुछ वनों को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में उन्होंने उसको declare कर दिया. Okay, it is completely reserved forest. They declared it's reserve forest. Which here what do you mean by reserve forest? Reserve forest माने कुछ ऐसे वन जहाँ पर उन्हीं पेड़ों को उगाया जाता था जिसका ब्रिटिशर्स को ज़रूरत था लकड़ियों के लिए. वो उस वन में वो वही प्रोड्यूस, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस द टिम्बर, वो वही पेड़ उगाते थे जिससे उनकी ज़रूरत हो. ठीक है. सो इन दीज फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. अब क्या हुआ, ये जो
रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर ट्राइबल्स को बड़े आसानी से यहाँ से वहाँ घूमने की कोई अलाउ नहीं था. मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द रिजर्व फॉरेस्ट. इवन दे कैन नॉट प्रैक्टिस द ज़ूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. जो पहले ये जो ट्राइबल पीपल थे वो बड़े आसानी से यहाँ वहाँ वो फॉरेस्ट में घूमते थे. अब जब रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, अब यहाँ पर जो है वो ज़ूम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते. ट्राइबल पीपल ना ज़ूम कल्टीवेशन कर सकते हैं या ना तो यहाँ पे वो जाकर फ्रूट्स या एनिमल हंट कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं उनका जो पहले जो उनका जो जीने का तरीका था, that was somewhere, or their freedom, it was being curtailed. Now what happened? However, how were Zoom cultivators to survive in such situation? अब ऐसे स्थिति में Zoom cultivators कैसे जिंदा रह पाएंगे? So many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. अब जब Zoom cultivators रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मतलब घुस ही नहीं सकते और ना ही वो कल्टीवेशन कर सकते हैं. Now so when the Zoom cultivators were not allowed to enter into the forest, or as the tribes were not also allowed to collect the fruits or hunt animals, now there was a big question that how were the Zoom cultivators to survive in such a situation. And that's the reason that these tribal people were forced to move to other areas in search of work and livelihood. Understood? Now, but once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? So what happened? The British officers या British government, they came with a solution. उन्होंने क्या किया, एक हिस्से फॉरेस्ट के एक हिस्से पे इन लोगों को खेती करने के लिए छूट दिया गया, लेकिन उसके बदले में देयर वाज वन कंडीशन कि उनको लेबर प्रोवाइड करना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और साथ ही साथ जो है वो फॉरेस्ट का भी देखभाल करेंगे. अंडरस्टूड? अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको लेबर क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अब चीप लेबर की ज़रूरत है. तो ये लेबर कहाँ से मिलेंगे? ये ट्राइबल्स जो है उनको लेबर प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो खुद लेबर की तरह वहाँ पे काम करेंगे. और इससे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत फ़ायदा था क्योंकि उनको एक चीप लेबर मिल रहा है. और ये जो पेड़ है, पेड़ को काटने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इवन ये जो पेड़ है इनकी बहुत ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी, क्योंकि ये पेड़ से जो है वो रेलवे ट्रैक्स के लिए जो स्लीपर्स बनाते थे वो सब के लिए ये पेड़ों का ज़रूरत होता था. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज स्लीपर? स्लीपर इज एक्चुअली इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल plank of wood on which the railway tracks were laid. तो ये इस चीज़ के लिए जो है उनको लेबर की ज़रूरत थी पेड़ काटने के लिए. तो अब इस कंडीशन पर उन्होंने ट्राइबल्स को एक हिस्से पे खेती करने की छूट दी. ठीक है? सो इन दिस वे इसमें ब्रिटिशर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा था क्योंकि उनको चीप लेबर मिल भी रहा था, और उसी तरीके से ये ट्राइबल्स जो है फॉरेस्ट का भी देखभाल कर लेंगे और उनको साथ ही साथ चीप लेबर भी मिल जाएगा. ओके, नाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस. नाउ व्हाट हैपेंड? धीरे धीरे इनको महसूस हुआ ट्राइबल पीपल को कि अपने ही फॉरेस्ट में उनसे काम कराया जा रहा है. मतलब ये नए नए कानून जो ब्रिटिशर्स ने उन पर थोपा है, इस वजह से जो पहले वो जिस फॉरेस्ट में बड़े फ्रीली घूमते थे, अब जो है उनको एक हिस्सा दिया जा रहा है जहाँ पर उनको काम करना है कंडीशन के तौर पर, और उस पर कंडीशन भी उनको ये किया है कि आप जो है लेबर प्रोवाइड करेंगे, आप चीप लेबर प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ जो है पूरे फॉरेस्ट का भी देखभाल करेंगे. तब उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इन लोगों की फ्रीडम को जो है उन्होंने छीन लिया है, और जो पहले उनकी जो ज़िंदगी थी अब जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में आ चुकी है. सो व्हाट दे डिड वो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. दे डिसोबेड द न्यू रूल्स एंड कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड illegal. And now what happened? They disobeyed मतलब वो उन लॉज को नहीं मानते थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाया. अब वो उनके विरोध करने लगे, और जिस प्रैक्टिसेस को जैसे कि हंटिंग करना या
कहीं भी जंगलों में आना जाना, खासतौर से रिजर्व फॉरेस्ट में, ये सबको इलीगल मानते थे ब्रिटिश सरकार, उसको भी वो अब जबरन ट्राइबल पीपल करने लगे। और इससे जो है दे स्टार्टेड ए ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सच वाज द रिवॉल्ट ऑफ सोंगराम संगमा इन 1906 इन असम। और इसी तरीके से एक विद्रोह शुरू हुआ जिसका नाम है सोंगराम संगमा इन 1906, असम में हुआ। एंड सिमिलरली some other revolts like forest satyagraha of 1930s in central provinces. So you have understood, my dear students, that how the British policies had affected the tribal lives. So I hope, my dear students, that whatever today I taught you, you have understood very well, and I request you all to please study at home, take care of yourself, and be positive, think positive, and thank you. Jai Hind.